Hello everyone, my name is Kashish and today I am going to make a demo video of the subject English for class 12. Basically this video will comprise of all the important things that a student should study in his board exams. Hello class 12 students, the chapter that we are going to study today is a very beautiful poem written by Kamla Das, My Mother at 66. Basically it is from the book Flamingo, so I will be telling you that what we are going to cover in this video. First of all, we are going to cover about the poet, the introduction of the poet. Then we are going to cover the paragraphs और मैं आपको उसके word meanings भी दूंगी and then explanation भी करूंगी. Then we are going to do some questions related to that paragraph. Basically मैंने इस पोएम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. तो जैसे ही हमारा एक पार्ट कंप्लीट होगा आई विल बी गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो आप उसका आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड देन यू कैन गिव द आंसर्स. Then we are going to do some of the past year questions also, and if you want I can make a separate video on all the past year questions. Then we are going to do some of the literary devices in the poem which are very important for your exam purposes. जैसे आपको पता है कि हम लोग बोर्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, so past year questions, literary devices of the poem is very important to cover. Okay, so let's start with the introduction of Kamla Das. Her full name was Kamla Das. She was born in 1934 in Malabar, Kerala, and she died in 2009. She is one of the India's foremost poet. तो बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि अपने टाइम की बहुत जानी मानी इंडिया की foremost poet थी. Then she is known for her originality, versatility and local flavor of Kerala in her writing. बेसिकली वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है? अपनी ओरिजिनलिटी अपनी पोम में दिखाने के लिए, अपनी राइटिंग्स में दिखाने के लिए, उनकी वर्सेटाइलिटी. Basic like she is having an ability to write in several style or several forms. Okay, then she is also known for her local flavor of Kerala in her writing. So basically she is depicting or she is incorporating Kerala's cultures, Kerala's traditions in her poem, in her writings. She wrote novels, short stories in English and Malayalam under the pen name Madhavi Kutti. तो बेसिकली उन्होंने नॉवेल्स लिखी, काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इन इंग्लिश एंड मलयालम ऑल्सो अंडर द पेन नेम माधवी कुत्ती. देन शी पब्लिश्ड 5 बुक्स ऑफ पोएट्री. शी इज फेमस फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप इन अ लिरिकल एंड सिंपल लैंग्वेज. बेसिकली जब आप ये पोम पढ़ेंगे माई मदर एट 66, यू विल बी एबल टू सी कि कैसे उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस को एक पोट्री के फॉर्म में डिफाइन किया है, एक पोट्री के फॉर्म में लिखा है. सो बेसिकली वो अपनी पोम को इतने अच्छे से ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करके लिखती थी. देन शी यूज टू राइट अबाउट द रिलेशनशिप्स इन अ वेरी लिरिकल एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. My Mother at 66 is a fine example of her sensitive, emotional writing style. Let's start with paragraph number 1. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Basically, it is a very beautiful poem. You will love it. So the explanation of this is the poet was driving to Cochin with her mother sitting beside her. तो basically वो क्या कर रही थी, जो पोएट थी अपनी मम्मी के साथ, उनकी मम्मी उनके बगल में बैठी हुई थी and she was driving to Cochin. Okay, then I saw my mother beside me doze का मतलब क्या है? lightly sleep. ओके कि शी वॉज हैविंग अ लाइटली स्लीप. जैसे हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी आइज़ बंद कर लेते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, बट थोड़ा हल्की नींद में आँख लग जाती है, जैसे उस टाइप का. देन ओपन माउथेड का मतलब जो उनका माउथ था इट वॉज वाइड ओपन. ठीक है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. तो बेसिकली एशन का मतलब होता है पेल ग्रेइश लाइक एशेज. बेसिकली जो एशेज होती है ना उस टाइप से. शी वॉज टेलिंग दैट हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ये है इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखना सिमिली में एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो बेसिकली अगर हम किसी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो सिमिली आता है. तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, सो इसमें जो मदर्स का फेस है वो कॉर्प से कंपेयर किया गया है
इस वजह से इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? सिमिली. ओके, यस. एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. बेसिकली कॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी. रियलाइज्ड मीन्स अंडरस्टूड एंड विथ पेन मीन्स with sadness. तो the poet was driving to Cochin with her mother sitting beside her, and जो poet थी उन्होंने नोटिस किया अपनी मम्मी को सोते हुए with her mouth open. Then her face looked pale and grey like a dead person face. Basically वो ऐसे compare कर रही है अपनी mother के face को कि उनका जो face है it was looking very pale, it was looking very grey like a dead person face. This made the poet very sad. तो इस वजह से मतलब ये देख के पोएट को बहुत ही सैड फीलिंग हुई बिकॉज शी रियलाइज हाउ ओल्ड हर मदर हैड बिकम. तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी मदर कितनी ओल्ड हो चुकी हैं. ठीक है, बिकॉज टाइम के साथ साथ हमारी मदर दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड वी आर रियलाइजिंग इट एट दैट मोमेंट. तो वही एक मोमेंट था जिसमें उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि उनकी मदर कितनी ओल्ड हो चुकी है. So check your understanding from this. First of all, you can pause the video. Then you can write the answers in the comment section. Check your understanding. Paragraph number 1. Question number 1. Where was the poet driving to? Basically a very simple question, but can be asked. अगर किसी ने पोम अच्छी से नहीं पढ़ी है तो उसको नहीं आएगा. So she was driving to Cochin. What does ashen mean in the poem? Ashen का मतलब क्या था? Grey and pale like ash. What did the mother realize with pain? तो पेन के साथ मदर ने क्या रियलाइज़ किया था कि हर मदर वॉज एंग्री? नो. हर मदर वॉज हैप्पी? नो. हर मदर वॉज स्लीपिंग तो कर रही थी, लेकिन पेन के साथ उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? दैट हर मदर वॉज ओल्ड एंड वीक. सो इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे. बेसिकली फर्स्ट 3 आर रिलेटेड टू दिस वन पैराग्राफ. तो आप साइड में पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट पढ़ सकते हैं. द फ्रेज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स गिव्स द इम्प्रेशन दैट द मदर इज. बेसिकली जो फ्रेज है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इट इज सिमिली, है ना. तो वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन देती है कि मदर क्या हो रखी है? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या वो डिप्रेस्ड हैं, क्या वो डेड हैं, या फिर वो वीक है? शी इज वीक एंड ओल्ड लिखा था ना उसमें. तो इसीलिए द फ्रेज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स गिव्स द इम्प्रेशन दैट द मदर इज weak. Then state whether the following statement is true or false with reference to the extract. The mother was suffering from some fatal disease. तो true और false बताना है कि the mother was suffering from some fatal disease. क्या वो किसी ऐसे डिजीज से जूझ रही थी, सफ़र कर रही थी जिसकी वजह से डेथ होती है, लाइक कैंसर एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ दैट डिजीजेस. क्या वो ऐसे किसी डिजीज से सफ़र कर रही थी? नहीं. शी वॉज जस्ट गेटिंग ओल्ड एंड इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस. Which of the following themes is best represented in the given extract? Basically, कौन सी theme is represented in this extract is life is short and one must enjoy it. B. Aging and mortality. C. Sleeping and playing. D. Art of parenting. Basically देखो sleeping and playing का तो नहीं है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी नहीं है. फर्स्ट इज लाइफ इज शॉर्ट एंड वन मस्ट एंजॉय इट. ऐसे तो कुछ लिखा ही नहीं है पैराग्राफ में. बेसिकली जो पैराग्राफ है, जो ये एक्सट्रैक्ट है, उसमें क्या लिखा है? एजिंग एंड मोर्टालिटी के बारे में. ओके ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पैराग्राफ. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. The merry children spilling out of their homes. First of all, let's see जो words यहाँ पे use हुए हैं. Put that thought away. इसका मतलब क्या है कि किसी भी thought को side रख दो. Put that thought away. Try to forget the sad thought. Basically, the poet is thinking about a very sad thing, which is her mother's old age. तो बेसिकली उनकी जो मदर की ओल्ड एज थी, शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट एंड शी वॉन्टेड टू कीप दैट थॉट अवे टू फॉरगेट दैट सैड थॉट. देन है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है ट्रीज अपेयरिंग टू रन फास्ट बिकॉज द कार इज मूविंग. जब भी हम कार से कहीं पे मूव करते हैं या कहीं से भी ट्रैवल करते हैं, सो वी सी द ट्रीज दैट आर मूविंग बैकवर्ड्स बिकॉज हमारी जो कार है वो आगे को चल रही होती है. ठीक है, तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब है कि ट्रीज आर अपेयरिंग टू रन फास्ट, क्योंकि कार जो है वो मूव कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रीज भाग रहे हैं. मैरी का मतलब हैप्पी, चीयरफुल. फिर है स्पिलिंग आउट. स्पिलिंग आउट मीन्स कमिंग आउट क्विकली. लेट्स सी कि ये वर्ड्स कैसे यूज हुआ है इस पैराग्राफ पे. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज. सो बेसिकली टू अवॉइड फीलिंग सैड अबाउट हर मदर्स ओल्ड एज, पोएट टर्न अटेंशन टू द सीनरी आउटसाइड द कार. बेसिकली क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस थॉट के बारे में, उनको बहुत सैड फीलिंग हो रहा था
अपनी मदर की ओल्ड एज के बारे में, तो पोएट ने सोचा कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अपना अटेंशन जो कार है, कार के बाहर जो सीन है उसमें अपना अटेंशन डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने नोटिस किया, शी नोटिस्ड यंग ट्रीज रनिंग पास द कार एज इट इज मूव्ड। तो बेसिकली उन्होंने क्या नोटिस किया, जो यंग ट्रीज हैं दे आर रनिंग पास द कार, जैसे ही कार मूव कर रही है। The merry children spilling out of their homes. तो she also saw happy children running out of their homes full of life and joy. तो बच्चों को देखा है ना कितने young type होते हैं, कितने energetic होते हैं, they are full of life, they are full of joy when they are in the playground. तो basically उन्होंने happy children को वहाँ पे खेलते हुए देखा, they were running out of their homes, they were having full of लाइफ एंड जॉय। बेसिकली स्पिलिंग का मतलब है कमिंग आउट क्विकली। तो चिल्ड्रन जो है ना अपने घर से भाग जाते हैं, जैसे ही शाम होती है, धूप जाती है, दे यूज टू कम आउटसाइड, दे यूज टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स एंड दे यूज टू एंजॉय। तो बेसिकली यही बात पोएट ने कही है। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग, what does young trees sprinting mean? बेसिकली young trees sprinting का मतलब क्या है, मतलब कि ऐसा अपेयर हो रहा है कि जो हमारे ट्रीज हैं वो भाग रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट बिकॉज द कार इज मूविंग। तो कार मूव कर रही होगी तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज हैं दे आर रनिंग। सो इसका आंसर है ट्रीज अपेयरिंग टू रन फास्ट बिकॉज द कार इज मूविंग। सेकेंड, what were the children doing? चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? they were playing inside? no. Were they sleeping? Were they studying? No. क्योंकि शाम का टाइम था तो spilling out of their homes happily, तो वो बाहर आए थे, खेल रहे थे अपने घर से बाहर आके। Why did the poet look outside? तो सबसे पहले पोएट ने बाहर क्यों देखा? To enjoy the view? No. To talk to the children? No. To see the road? No. But the poet looked outside to avoid the painful thought of her mother's old age. Basically वो चाहती थी कि मैं अपनी मदर की जो ओल्ड एज है उसके बारे में ना सोचूं, मैं अपना माइंड किसी और चीज में डाइवर्ट करूं, इस वजह से शी वाज लुकिंग आउटसाइड। लेट्स मूव ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिकली 2024 में आए थे। लेट्स रीड द फोर्थ वन, क्योंकि 3 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। पिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड स्पेलिंग इज यूज इन द सेम सेंस एज इन दी एक्सट्रैक्ट। बेसिकली अगर आप एक्सट्रैक्ट रीड करोगे ना तो उसमें जब स्पेलिंग वर्ड यूज हो रहा है तो इट इज बेसिकली डिफाइनिंग की एक बेसिक फिजिकल मूवमेंट हो रही है किसी चीज की, ठीक है। इट इज नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है, या फिर जबरदस्ती कोई चीज नहीं हो रही है, इट इज ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट। तो हमें इन चारों एक्सट्रैक्ट में से देखना है कि कौन सा ऐसा एक्सट्रैक्ट है जिसमें फिजिकल मूवमेंट इज डन। फर्स्ट ऑफ ऑल, राहुल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिलिंग द बीन्स बाई टेलिंग एवरीवन द सीक्रेट, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर स्पिलिंग द बीन्स बाय टेलिंग एवरीवन द सीक्रेट। तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि उसने गलती से बीन्स को स्पिल कर दिया होगा, तो इट इज डन एक्सीडेंटली, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। ही ओपन द बैग स्पिलिंग ऑल इट्स कंटेंट ऑन द टेबल, तो उसने क्या करा, बैग खोला एंड सारे कंटेंट्स को टेबल पे बिखरा दिया, दिस इज ऑल्सो एक्सीडेंटल। Try to keep that crowd from spilling onto the mainstream. बेसिकली ये चीज डिपिक्ट करती है कि ये चीज जो हुई है वो फिजिकली हुई है, ठीक है, ये गलती से नहीं हुई, एक्सीडेंटली नहीं हुई है। तो आंसर विल बी ट्राई टू कीप दैट क्राउड फ्रॉम स्पिलिंग ऑनटू द mainstream. The cat spilled all the milk, तो ये तो होगा नहीं बिकॉज इट इज डन एक्सीडेंटली। तो दिस द C1 विल बी द पैराग्राफ विल बी द एक्सट्रैक्ट जिसमें वर्ड स्पिलिंग इज यूज्ड इन द सेम सेंस। देन फिफ्थ वन, the phrase young trees sprinting and the merry children spilling represent। बेसिकली young trees sprinting का मतलब जो young trees है जो अभी अभी उगे हैं या फिर अभी अपने यूथ वाले टाइम पे चल रहे हैं, और जो merry children spilling है वो भी अपने यूथ के टाइम पे चल रहे हैं, तो आंसर विल बी यूथ। Complete the sentence appropriately. She was as old as she looked. So basically जो इसमें as word का repetition हुआ है, what does that suggest? The poet is emphasizing the reality and the undeniable truth of her mother's aging. तो basically as word से ये समझ आ रहा है कि poet emphasize कर रही है कि क्या reality है, क्या एक ऐसा truth है जिसको वो deny नहीं कर सकती of her mother's aging. Let's see the literary devices that were used. Okay, so first paragraph का एक रह गया था, ये देखना, doors open mouthed, her face ashen।
तो बेसिकली ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा है, विजुअल पिक्चर्स बता रहा है। जैसे ही हम ये चीज़ सोच रहे हैं ना, डोज ओपन माउथेड, मतलब कि कोई सो रहा है थोड़ी सी हल्की सी नींद में और उनका माउथ जो है वो वाइड ओपन है, तो हम सोच रहे हैं, एक इमेजिनेशन से एक इमेज बना रहे हैं, विजुअल इमेज बना रहे हैं अपनी माइंड में। तो दिस विल बी इमेजिनरी लिटरेरी डिवाइस। Then we are going to see personification in young trees sprinting. Basically देखो जो सेकंड वाला है, इसमें young trees sprinting मतलब trees seem to run, showing the cars motion and liveliness. Basically personification का मतलब होता है कि अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ये एज्यूम करते हैं कि वो लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग की तरह काम कर सकती है, तो उसको हम personification बोलते हैं। तो जैसे ही हम बोल रहे हैं कि young trees are sprinting, that means जो trees हैं they seem to run when the car is moving, तो उस वजह से इसको हमने personification literary device बोला है। Let's move on to the paragraph number 3. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked at her, wan, pale as a late winter's moon. तो basically अब क्या हुआ, she reached the airport and completing the security check. तो जो poet थी, she stood at some distance and looked at her mother again. तो उन्होंने अपनी मदर को दोबारा से देखा। यहाँ देखना वर्ड मीनिंग में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बेसिकली एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पैसेंजर्स को चेक किया जाता है। देन सेकेंड वन इज यार्ड। यार्ड का मतलब होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देन वैन, वैन का मतलब पेल, वीक, सिक लुकिंग। बेसिकली उन्होंने क्या देखा था, आई लुक्ड एट हर वैन, पेल। तो बेसिकली उनको क्या लगा कि जो उनकी मदर हैं, शी वॉज लुकिंग सो मच पेल, शी वॉज लुकिंग सो मच वीक। एंड लाइक होता है ना कि ओल्ड पीपल थोड़ा सिक लुकिंग करते हैं बिकॉज उनकी झुर्रियाँ हो जाती हैं, जो उनकी जो स्किन है दे यूज टू टर्न पेल। तो बेसिकली यही सब वो देख रही थी। लेट विंटर्स मून का मतलब अ डिम फेडिंग मून टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर। जब विंटर एंड होने वाले होते हैं तो एक डिम, बहुत हल्का सा फेडिंग मून दिखता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंटर। So after reaching the airport and completing the security check, the poet stood at some distance and looked at her mother again. Her mother's face looked pale and lifeless. तो जो उनकी मम्मी का फेस था, it was looking pale and lifeless, like the weak dim moon seen at the end of the winter. उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, कितने सिंपल तरीके से ये पोम को लिखा है, कितने प्यारे तरीके से इन कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन नेचर है, ये जो फीलिंग्स हैं, उनको कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस पोएम में। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू? तो उन्होंने अपनी मम्मी का जो फेस है वो किससे कंपेयर किया था? अ लेट विंटर्स मून। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन? वैन का मतलब क्या है? ब्राइट एंड कलरफुल? नो। हैप्पी एंड cheerful? नो। स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड? नो। इट इज पेल एंड वीक। ओके। वेयर वॉज द मदर स्टैंडिंग आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? तो मदर कहाँ थी? द पोएट वॉज स्टैंडिंग आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। तो पोएट कहाँ खड़ी थी? अपनी मम्मी के पास खड़ी थी, होम में थी, इनसाइड द कार थी। शी वॉज अ फ्यू यार्ड्स अवे। ओके। नाउ पैराग्राफ नंबर 4. And felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो बेसिकली देखो, इसमें जो ओल्ड फैमिलियर एक है, इट इज़ द वेल नोन फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, कि पुराना चलता हुआ आ रहा हमारा एक है, हमारा कोई दर्द है जो हम पहले से सोचते थे और हमें वो चीज़ के बारे में सोच के बहुत सैड फील होता था। सो माई चाइल्डहुड फियर, बेसिकली इसमें पोएट के चाइल्डहुड फियर के बारे में बात की गई है। जैसे हर एक चाइल्ड का ये फियर होता है कि वो अपनी मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहता, वैसे ही पोएट का ये फियर था कि वो अपनी मदर से दूर नहीं जाना चाहती थी। She was having fear of losing her mother. But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. तो बेसिकली अम्मा जो थी वो मदर थी। ठीक है, मतलब हम अपने वर्ड्स में अम्मा को मदर बोलते हैं। स्माइल्स एंड स्माइल एंड स्माइल, हाइडिंग सैडनेस बाय स्माइलिंग रिपीटेडली। तो अगर हम जैसे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं किसी बात से और हम नहीं चाहते कि हमारा सामने वाला पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचे कि ये क्यों सैड है, तो हम क्या करते हैं? हम स्माइल करते हैं। ठीक है,
और शी वॉज ऑल्सो स्माइलिंग एंड से सी यू सून, मतलब वो अपनी मम्मी को बाय कर रही थी. सो सीइंग हर मदर वीक एंड पेल, द पोएट फेल्ट द सेम फियर शी यूज्ड टू हैव एज अ चाइल्ड, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. बट इंस्टेड ऑफ शोइंग हर सैडनेस शी कंट्रोल हर इमोशंस. तो सैडनेस को शो करने के बजाय उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, ताकि उनकी मम्मी को टेंशन ना हो जाए या वो सोचने लग जाए कि वाई शी वॉज नॉट हैप्पी, वाई शी वॉज सैड. सो उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया. शी स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय टू हर मदर लविंगली. ठीक है. नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग. What does the phrase that old familiar ache suggest in the poem? A recent physical pain? No. A childhood memory of a physical hurt? No. मतलब फिजिकल हर्ट के बारे में तो इसमें बात ही नहीं हुई है, इसमें कुछ इमोशनल चीज़ों के बारे में बात हुई है. और रिकरिंग इमोशनल पेन रिलेटेड टू द फियर ऑफ सेपरेशन. यस, दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि उनको रिकरिंग मतलब रिपीटेडली ये इमोशनल पेन से वो जूझ रही थी, विच वॉज रिलेटेड टू द फियर ऑफ सेपरेशन. वाई डज द पोएट रिपीट द वर्ड स्माइल थ्राइस इन द लास्ट नाइन? तो उन्होंने स्माइल 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 बोला था ना 3 बार, तो वो 3 बार क्यों उन्होंने रिपीट किया है? बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर इमोशनल पेन एंड सरप्रेस हर फीलिंग, हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. बेसिकली वो क्या करना चाहती थी? अपनी इमोशनल पेन को हाइड करना चाहती थी एंड सरप्रेस करना चाहती थी हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. वट इमोशन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द पोएट्स वर्ड्स सी यू सून अम्मा? तो बेसिकली क्या था? एक कॉन्फिडेंट प्रॉमिस ऑफ रिटर्न था, अ कैजुअल गुड बाय था, अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू मास्क हर सैडनेस एंड फियर ऑफ सेपरेशन एंड एन इनडिफरेंट फेयरवेल. बेसिकली जो ये पोएट के वर्ड्स से सी यू सून अम्मा, इट इज़ बेसिकली अ डेस्परेट अटेम्प्ट कि वो अपनी सैडनेस को मास्क करना चाहती थी, छुपाना चाहती थी अपने फियर ऑफ सेपरेशन को. Okay, so let's move on to the literary devices in the poem. We have studied simile, personification. Alliteration में क्या होता है? आपके जो लेटर्स होते हैं जैसे एस एस एस, वो रिपीट होते हैं, मतलब साउंड रिपीट होती है. ठीक है. सो रिपीटेशन ऑफ एस साउंड फॉर सॉफ्ट इमोशनल इफेक्ट. ठीक है. साउंड इमोशनल इफेक्ट के लिए एस साउंड का बार बार रिपीटेशन हो रहा था. रिपीटेशन बेसिकली अगर आपका लेटर का रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन है, अगर आपके वर्ड का रिपीटेशन होगा तो इट विल बी रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस. ओके. रिपीटिंग स्माइल शोज पोएट हाइडिंग पेन. फिर आता है इमेजरी, वी हैव डन दिस. देन आता है सिंबोलिज्म, लेट विंटर्स मून. बेसिकली जो मून है वो किसी चीज को अगर सिंबलाइज करता है, अगर किसी भी पोम में ऐसा कुछ लिखा है कि कोई एक चीज किसी को सिंबलाइज करती है, जैसे मून सिंबलाइजेस द ओल्ड एज. ठीक है. तो हम उसको सिंबोलिज्म बोल देते हैं. देन यंग ट्रीज मैरी चिल्ड्रन. बेसिकली जो ट्रीज हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या बताया गया? उनको यंग बताया गया, तो वो उनका यूथ सिंबलाइज किया गया है. फिर है कॉन्ट्रास्ट, मदर्स डलनेस वर्सेस आउटसाइड लाइफ. तो बेसिकली इस पोम में किस चीज का कॉन्ट्रास्ट किया गया है? मदर के डलनेस का कॉन्ट्रास्ट किया गया है आउटसाइड लाइफ से. सो इट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन एजिंग एंड एनर्जेटिक लाइफ आउटसाइड. तो बेसिकली ये चीज थी इन सब में. I hope that you understood it very well. If you want the videos of all the past year questions that have been asked and the next chapters, you can comment in the comment section. Like, share and subscribe. Thank you.